Hello everyone. Good evening everyone. On behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, I could like to welcome all the attendees present online. I am Ruksar. Today's session is going to be about unlocking the power of Tally Release 6 futures. So before moving ahead to the topic, let's take an introduction of Rajlakshmi, a RSPL into a various segment to serve their customers like sales, service, solutions, implementation, and development. We are partners to OEM like 5-star Tally partners, channel partners for SAP B1, Gold partners for Bittrex 24, channel partners for ERP Wave. I am conducting today's session PPT by Miss Sunali and live demo by Miss Arth. Miss Sunali, are you available? Yes, Please go ahead. just screen is visible. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Hello, good evening all. Myself Sonali, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of management and the entire team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead, our today's topic is unlocking the key features if Tally Release 6. So now, Tally Prime 6.0 launches a transformed banking experience with an exciting new capability. जैसे कि connected banking with enhanced bank reconciliation and automated accounting using bank statement, जो कि हमें यहाँ पे अपना quality time to the growth of your business. Next point is data split. Data split is also much faster now with robust data verification. You can make the most of the new profile features where you can easily update your contact details and receive timely communication. And next, first point is connected banking in Tally Prime Release 6.0. Connected banking eliminates the need to log in to multiple bank portals by providing a single secure login through tally.net credentials. This feature allows seamless connection of all bank accounts to Tally Prime, सिंप्लीफाइंग बैंकिंग ऑपरेशंस. तो यहाँ पे जो कनेक्टेड बैंकिंग जो है उसके फीचर्स दिए गए, जैसे कि फर्स्ट है रियल टाइम बैंक स्टेटमेंट, जो हमें एक्सेस देता है अप टू डेट बैंक स्टेटमेंट. हम डायरेक्टली टैली प्राइम से अप टू डेट उसका एक्सेस कर सकते हैं. Second point is instant bank balance. View current bank balance without leaving the application. Then next point is online bank statement. Retrieve bank statements online and use them directly for bank reconciliations, saving time and effort. तो कनेक्टेड बैंकिंग में जो है हमें 3 फीचर्स दिए गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेंस बैंक रिकंसिलेशन इन टैली प्राइम रिलीज 6.0. टैली प्राइम्स बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस इज नाउ मोर efficient and intelligent, offering improved options or both automatic and manual reconciliation. The enhancement simplify matching transactions between books and bank statement to save time and reduce error. जैसे कि यहाँ पे जो फीचर्स है ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन, हम ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्टली हम टैली से. वहां पे हमारा जो बुक एंड बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ हम हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से है वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज स्मार्ट सजेशन. Provides intelligent suggestion for potential matches, simplifying the reconciliation process. Next point is custom rules for matching. Defined rules for identifying potential matches based on specific business requirements, making it easier to find matching ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल मैचिंग ऑप्शंस. यहाँ पे जो है जो भी एरर्स रहेंगे हम वहाँ पे मैच कर सकते हैं हम यहाँ पे वन या मल्टीपल ट्रांजेक्शंस लेवल पे, जैसे कि हमारा जो बुक्स में रहेंगे एंड जो हमारे बैंक में रहेंगे वो ट्रांजेक्शंस हम यहाँ पे एक्यूरेट रिकंसाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युअली रिकंसिलेशंस. मैन्युअली रिकंसिलेशन जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पे हमें जो कंटिन्यू हम यहाँ पे उसको रिकंसाइल कर सकते हैं हम हमारे बिजनेस लेवल के साथ साथ. देन नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट टाइम रिकंसिलेशन सेटअप. Reconciliation data can be set and unreconciled transactions can be added to an opening BRS report. This transaction will then appear in the bank reconciliation report for further processing. तो इस तरीके से हमें बैंक रिकंसिलेशन में जो है फीचर्स दिए गए उस फीचर्स के साथ साथ हम हमारा रिकंसिलेशन जो है
बैंक स्टेटमेंट एंड बुक स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज automatic statement in Tally Prime Release 6.0. Reduce manual data entry by creating vouchers from imported bank statement. जैसे कि यहाँ पे जो फीचर्स है वाउचर क्रिएशंस का, हम यहाँ पे पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स जो है जनरेट कर सकते हैं जब हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। देन सेकेंड पॉइंट इज टाइम इफिशियंसी, minimize repetitive data entry task, allowing focus on more critical activities. The next point is integrated payment and accounting in Tally Prime 6.0. Facilities efficient payment process and tracking. तो यहाँ पे जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है ट्रैकिंग किस तरीके से होता है ये फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग जो है किस लेवल पे होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फीचर्स में हम देखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज इनहेंस ई पेमेंट रिपोर्ट। ई पेमेंट रिपोर्ट हैज बीन रीडिजाइन फॉर बेटर क्लैरिटी एंड यूजेबिलिटी। ड्रिल डाउन टू करेक्ट डिटेल्स और रिव्यू पेमेंट स्टेटस बिफोर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम टैली प्राइम। यहाँ पे जो ई पेमेंट इंटीग्रेशन सिंपल लेवल पे जो दिया है हमें, यहाँ पे हम जो है पेमेंट एंड जो पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे या मल्टीपल जो हम पेमेंट्स फाइल्स जो है जनरेट करेंगे वो प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल लेवल पे। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है ई पेमेंट रिपोर्ट्स में दिया गया है। सेकेंड पॉइंट इज enhanced tracking, provide a undefined view of payment status and histories. Then next point is banking details in reports. Reports like ledger vouchers and daybook now include banking related data such as account numbers, payment method, transaction details, instrument numbers and date. This help in tracking payment and reconcile status more effectively. Then next point is expand bank data import. Now import bank data from over 145 banks in India and 80 banks across Asia, Africa and North America can be stored in company data for easy and quick reference एंड रिकनसाइल। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर मोड का, जो कि हम ई पेमेंट जो करेंगे हम डायरेक्टली वहां पे फ्लेक्सिबल लेवल पे सेट कर सकते हैं ई फंड ट्रांसफर मोड को। वहां पे ऑटोमेटिकली जब भी हम जब भी हम ई फंड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली अप्लाई मोड पे देगा, जैसे कि IMPS है, NFT है, ई पेमेंट वाउचर है, ये बेस पे हम हमारे ट्रांजेक्शन अमाउंट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। Next point is bank and reconciliation details in transaction. Payment and receipt now included complete bank and reconciliation details for quick reference during voucher creations और modifications. उसके साथ साथ हमें यहाँ पे बैंकिंग डैशबोर्ड टाइल्स भी दिया है, जो कि हम हमारे जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स रहेंगे या जो भी हमने डेटा रिकनसाइल किया है वो हमें डैशबोर्ड लेवल पे वहां पे मॉनिटरिंग के लिए दिखाई देगा। ये हमें एक ऑप्शन टैली 6.0 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रिलेटेड डिटेल्स इन ईडिट लॉग। ट्रैक चेंजेस इन बैंक डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट एंड UPI ID डायरेक्टली इन दी ईडिट लॉग। तो यहाँ पे हमें पेमेंट एंड अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड में 6.0 के रिलीज में इस तरीके से फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से अपना बैंक रिकंसिलेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, रिकंसाइल भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग लेवल पे यहाँ पे रिपोर्ट किस तरीके से दिखता है वो हमें इस फीचर्स के थ्रू पता चल जाता है। तो ये हम आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्मूथर डेटा स्प्लिटिंग विथ रोबस्ट वेरिफिकेशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम 6.0 introduce and enhance data split features designed for greater simplicity and convenience. The updated interface along with new split options ensure a smoother process for managing data separation. A data verification prompt guides users through the process, while improve error verifications ensures accuracy and minimize potential issues. This enhancement make data splitting more efficient and reliable, सपोर्टिंग बेटर डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो है डेटा स्प्लिटिंग में हमें जो फीचर्स दिए गए, डेटा वेरिफिकेशंस का जो दिया है यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है स्प्लिटिंग प्रोसेस के टाइम पे। देन सेकेंड पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट इस तरीके से ऑप्टिमाइज के लिए हमें यहाँ पे डेटा का जो भी है वैल्यू जो है हम यहाँ पे मैनेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज easily manage your profile details.
Tally Prime 6.0 introduce a new profile features that allow users to view and update the contact details linked to their Tally serial number, ensuring timely and communications and updates. तो यहाँ पे जो उसके highlights है, जैसे कि हम view and edit profile जो है, यहाँ पे हम directly Tally Prime से कर सकते हैं. Second point है Tally Portal Access का. Tally Portal Access easily navigate to the Tally portal for further updates. Next point is reminders. Receive notification twice a year to check and update profile details. Keeping the profile updated ensures smooth and efficient communications. Next point है यहाँ पे GST related. जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे GSTR1 filing. GSTR1 filing is now more intuitive, ensuring the return is uploaded before filing, preventing nil rated. Next point is accurate tax PD section. In GSTR1 now display details more accurately with amounts matches correctly without further action required. Next point है कॉपिंग B2B सेल्स इनवाइस. जैसे कि हमारे B2B सेल्स इनवाइस जो है हम कॉपी कर सकते हैं यूजिंग F3 फीचर्स यूज करके. हम यहाँ पे डुप्लीकेट जो हमारे वाउचर्स नंबर से विथ डुप्लीकेट वाउचर नंबर के साथ हम GSTR1 और GSTR3 में इसको कॉपी कर सकते हैं. ये हमें बेस्ट ऑप्शन दिया है GST रिलेटेड. देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटीज 5.4 जो कि GSTR3B में हमें आया है अभी. Tally Prime now supported Excel offline utilities 5.4 for GSTR3B displaying ITC related information correctly under the right categories. ये पहली जो ऑप्शंस था ITC रिलेटेड हमें GSTR3B में नहीं था, बट अभी एक्सेल जो हम ऑफलाइन यूटिलिटीज यूज करेंगे 5.4 रिलीज का, तो यहाँ पे हमें ITC रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे शो हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट डिस्प्ले इन GSTR3B ट्रांजेक्शन विद URD बैंक एंड exempt expenses ledgers now appear under exempt, nil rated and non-GST inward supplies in GSTR3B instead of under uncertain transaction. Then next point is sales on quantity calculation. In sales on quantity, round off and decimal value is now calculated correctly in transaction, avoiding previous mismatches or incorrect tax amount. Then next point is useful TDS, seamless TDS calculation. When TDS value are updated in transaction, the details now appear correctly. Previously, updating TDS value caused issues with debit and credit and TDS ledgers value. So thank you so much. इस तरीके से हम Tally Prime 6.0 के फीचर्स में क्या क्या हमें न्यू फीचर्स दिए गए ये अभी हम लाइव सेशंस में देखेंगे. So thank you so much. Now it's time for the live demo. I request to Miss Aarti to proceed ahead for live demo. Thank you. I'm sharing my screen. My screen is visible. Yes. Thank you, Sonali ma'am. Hello everyone. Myself Aarti Narode. I am here to represent the live demo session on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So आज का हमारा टॉपिक है अनलॉकिंग द की फीचर्स इफ टैली रिलीज 6.0. हम सबसे पहले देखेंगे कनेक्टेड बैंकिंग इन टैली प्राइम रिलीज 6.0. टैली प्राइम 6.0 में बैंकिंग कैसे कनेक्ट करनी है अभी वो हम देखेंगे. उसके लिए हमें जाना है एक्सचेंज में. उसकी शॉर्टकट की है Alt Z. यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना है ऑल बैंकिंग ऑप्शन में. यहाँ पे हम जाएंगे लॉग इन और लॉग आउट. ये ऑप्शन दिए हमें. सबसे पहले बैंकिंग कनेक्ट करने के लिए हमें लॉग इन करना पड़ता है tally.net ID से. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपका tally.net ID कौन सा है. तो हमें वो ID यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डाल के हमें जो भी हमारी बैंक की डिटेल्स है वो डिटेल डाल के हमें बैंक कनेक्ट करनी है. नेक्स्ट हमें एक्सचेंज में ही यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है. यहाँ पे जाना है हमें ऑल बैंकिंग ऑप्शन में. यहाँ पे हमें दिया गेट स्टेटमेंट. जैसे हम गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है लॉग इन ID पासवर्ड डालना है tally.net ID का. फिर हमारा जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा. OTP डालने के बाद हमारे यहाँ पे जितने भी हमारी बैंक की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी.
वो हम रिकंसिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका यूज करके हमें हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलेशन इन टैली प्राइम रिलीज 6.0। सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से बैंकिंग में। बैंकिंग में आने के बाद यहाँ पे हमें जाना है बैंकिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे जितने भी बैंक के लेजर है वो लेजर यहाँ पे हमें शो करता है। यहाँ पे और दो ऑप्शन दिए हैं, अवेलेबल ओनली इन बुक्स एंड अवेलेबल ओनली इन बैंक। ये दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब हम हमारा जो रिकंसिलेशन है वो हम दो तरीके से देख सकते हैं, बुक्स के थ्रू भी और बैंक के थ्रू भी। अभी हमें जो बैंक का रिकंसिलेशन करना है वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे हमें स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, तो हमें जाना है इंपोर्ट में। उसकी शॉर्टकट की दी है अल्ट ओ। यहाँ पे जाना है हमें बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमें पूछता है कि बैंक लेजर, जो बैंक का हमें रिकंसिलेशन करना है, जो बैंक का हमें डेटा इंपोर्ट करना है, वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बैंक का लेजर। लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका फाइल पाथ कौन सा है। जो भी हमारा फाइल पाथ है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फाइल टाइप में हमें ऑल सेलेक्ट करना है और फिर पूछेगा कि फाइल कहाँ पे है, इनपुट जो फाइल करनी है हमें वो फाइल कहाँ पे, वो फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन दिया है शो प्रीव्यू, जो कि प्रीवियस वर्जन में नहीं है। जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट आने वाला है 6.0 का, उसमें हमें एक ऑप्शन दिया है शो प्रीव्यू का। मतलब कि जो भी हम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट उसका हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इंपोर्ट होने के बाद हम रिकंसिलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे बैंक की एंट्री हमने टैली में नहीं की है वो हम बल्क में कन्वर्ट करके पास कर सकते हैं। ऐसे हमारा रिकंसिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मूथ द डेटा स्प्लिटिंग विथ रोबस्ट वेरिफिकेशन इन टैली प्राइम रिलीज 6.0। डेटा स्प्लिटिंग में भी हमें न्यू अपडेट दिया है। हमें जाना है उसके लिए डेटा में। यहाँ पे हमें स्प्लिट, उसकी शॉर्टकट की है अल्ट वाई। यहाँ पे हमें जाना है स्प्लिट में। यहाँ पे दिया है वेरिफिकेशन डेटा, वेरीफाइड डेटा। वेरीफाइड डेटा में जाने के बाद जो कंपनी का हमें डेटा स्प्लिट करना है वो कंपनी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमारा डेटा वेरीफाई हो जाता है। पहले कैसे था, पुराने रिलीज में यहाँ पे सिर्फ हमें दिखता था कि कितने हमारे मतलब कितने यहाँ पे एरर है, डेटा स्प्लिट करते टाइम पे कितने एरर दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स में पता चलता था। और जो भी उसका क्या एरर आ रहा है वो हमें टैली के फोल्डर में एक पीसीपी फाइल क्रिएट होती थी, वहां पे जाके हमें देखना पड़ता था। अभी 6 पॉइंट के रिलीज में क्या किया है, यहाँ पे हमें नंबर्स भी दिखाता है कितने एरर है और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी दिखाता है कि क्या एरर है। इससे हमारा क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है और हम यहाँ से ही एरर सॉल्व करके डेटा स्प्लिट आसानी से कर सकते हैं। Thank you. Thank you, Aarti, for a wonderful session. Thank you, Sonali ma'am. This session will be uploaded to our YouTube channel, so stay connected to our social media accounts. Now we conclude this session. See you in the next webinar. Thank you.